তথা সাংবাদিক বন্ধুসকল, যেহেতু ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ তথা গণতন্ত্ৰ দেশত যেহেতু আপোনালোক চতুৰ্থ স্তম্ভ, গতিকে দেশ নিৰ্মাণত আপোনালোকৰ কৰ্তব্য আৰু দায়িত্ব আছে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু 9 বছৰ কালত যিটো আমাৰ মোদীজীৰ নেতৃত্বত যি পৰিৱৰ্তন আনিলে, হয় মানুহৰ সমস্যা যোৱা সিন্স ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হ'ল তেতিয়াৰ পৰা 70 বছৰলৈকে কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখা নাই। তাৰমানে নেতৃত্বৰ অভাৱত বুলি মই কওঁ। কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী 2014 পৰা আজিলৈকে যিটো 9 বছৰ কৰি দিলে, গতিকে ইয়াত আমি চাব লাগিব আমাৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা তেতিয়া কি আছিল আৰু আজি কি, এই কথা আমি লক্ষ্য কৰিব লাগে। যিকোনো ৰাষ্ট্ৰ যদি অৰ্থনৈতিক অৱস্থাত যদি শক্তিশালী নহয়, সেই ৰাষ্ট্ৰ শক্তিশালী হ'ব নোৱাৰে। গতিকে আজি গোটেই বিশ্বত গম পালে যে ইট ইজ এ ব্ৰাইট ষ্টাৰ, যিটো ভাৰতৰ যিটো ইকনমিক গ্ৰোথ আৰু ভাৰতৰ GDP 7.2% যে গ্ৰোথ, ইট ইজ এ সাৰপ্ৰাইজিং এভৰিবডি। গোটেই বিশ্বত এইটো সাৰপ্ৰাইজ কৰিলে। আজিৰ দিনত ফাইনেন্সিয়েল 2023 আমাৰ GDP গ্ৰোথ হৈছে 7.2। ঠিক তেনেকৈ এট প্ৰেজেন্ট আমাৰ ইকনমিক পজিশন কত 3.3 ট্ৰিলিয়ন ডলাৰ। গতিকে আমি অৰ্থনৈতিক দিশৰ পৰা চাব লাগিব। গতিকে মই ভাবো যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যিটো নেতৃত্ব দিছে, যে সেলফ ৰিলায়েন্স আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত দেশলৈ আমি গৈ আছো। আৰু ইয়াৰ লগতে চাব লাগিব যিটো মানে ৰিজনেলৰ বহুতো ৰাজনৈতিক সমস্যা, যিটো আমাৰ ৰহান ডাঙৰীয়া ক'লে, আমাৰ এই ডাঙৰীয়া ক'লে যে অট'নমাছ ষ্টেট বিষয়ে আপোনালোকে কি চিন্তা কৰে। গতিকে এই বিষয়ত মই সাংসদ হিচাপে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ হয় কেণ্ডিডেট হ'ল, মোক যেহেতু ভাৰত কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমাচা ৰাজ্যে মোক কৰিছে, গতিকে এই বিষয়ে মই পাৰ্লিয়ামেণ্টত উত্থাপন কৰিছো। আৰু এতিয়ালৈকে লাষ্ট সেশনলৈকে মই এই বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰাইভেট মেম্বাৰ বিল মই ব্যৱস্থা মানে এইটো তৈয়াৰ কৰা হৈছে, মই প্ৰস্তাৱটো দিম। আৰু এইটো আমাৰ সাংবাদিক প্ৰতিভা, এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইয়াত কোনো ক'বলগীয়া নাই। যিহেতু ৰাজ্যিক সমিতি ফালৰ পৰা এদিন আমি গুৱাহাটীত বহি, তেতিয়া আমাৰ বৰ্তমান সন্মানীয় মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস তেখেত আছিলে সভাপতি অসম প্ৰদেশত, গতিকে তেখেতৰ লগত গোটেই দিন আলোচনা কৰো যে পাৰ্টি ফালৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ফালৰ ইয়াত কোনো ঘূৰাই নাই বুলি তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰি দিয়া হ'ল। গতিকে আমাৰ এই যিটো ৰাজনৈতিক দাবী, এইটো আমি দাবী কৰি থাকিম। আৰু আমাৰ বিশ্বাস আছে যে আৰ্টিকল 244 যিহেতু ভাৰতৰ ভিতৰত আছে, এইটো এদিন নহয় এদিন পাব, আমাৰ বিশ্বাস আছে। আৰু বিশেষকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ওপৰত যেহেতু মোদী যেহেতু মুমকিন হে বুলি কয়। এতিয়া চাওক আপোনালোকে ভাৰতৰ সংবিধানত সিন্স স্বাধীন পোৱাৰ পিছত যে আৰ্টিকল 370 কথা যে যোৱা 70 বছৰে কোনো এটা চৰকাৰ, কোনো এজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়ে হাতত ল'বলৈ কোনে সাহস কৰা নাছিল। কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী 2014 পৰা যেতিয়া দেশখন যে চম্ভালিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু 2019ত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল, তেতিয়া আৰ্টিকল 370 যে কাশ্মীৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা হাতাই দিয়া হ'ল, 35 হাতাই দিয়া হ'ল। গতিকে এতিয়া সেই পৰিৱৰ্তনটো চাওক যে আজি জম্মু কাশ্মীৰৰ তাত ইকনমিক গ্ৰোথ হৈছে 14.64%। আৰু চাওক এই আৰ্টিকল 370 শেষ হোৱাৰ পিছত তাত টুৰিষ্ট ফুটফল কিমান এতিয়া 1.88 crore। গতিকে চাওক তাত মানে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ তাৰমানে শান্তি ঘূৰি আহিছে। তাত শান্তি ঘূৰি অহাৰ কাৰণে এতিয়া G20 নিচিনা সামিট জম্মু কাশ্মীৰত হ'ব পাৰিছে। গতিকে ইয়াতকৈ সাফল্য কিবা থাকিব পাৰে নাই। কোনেওতো ভবা নাছিলে জম্মু কাশ্মীৰটো দূৰৰ পৰা আৰু ভাৰতৰ কেপিটেল দিল্লীটোতো সুৰক্ষিত নহয়। মানুহে ক'ৰবাত যদি বাছ ষ্টেণ্ডে হওক বা এনি পাব্লিক প্লেচ কিবা যদি মালিক নথকা বস্তু যদি ক'ৰবাত পৰি থাকে, ইট মে বি বম, এইটো বম হ'ব পাৰে, চুব নালাগে বুলি কয়। কিন্তু সেই পৰিস্থিতিটো আজি নাই। গতিকে এইবোৰে আমি চাব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ MOS যিটো চাইন কৰা হৈ গ'ল, এইটো বিশেষকৈ আমাৰ এইটো এটা শিক্ষিতৰ বিষয়। গতিকে যে এইটো MOS টো যিটো চাইন কৰা হ'ল, এইটো ইমপ্লিমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান कि दुनिया के देशों में जो अपने आप को विकासशील देश कहते थे, अमेरिका की स्थिति कैसी है, बाकी देशों की स्थिति कैसी है, उसका जब आकलन करेंगे तो भारत कहां पर खड़ा हुआ है। भारत अपनी चीजों को लेकर और जो महंगाई को उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ में रोका। इसके कारण से
कुछ चीजों को हम लोगों को ये विचार करना पड़ेगा कि दुनिया के देशों के साथ साथ में उन देशों में महंगाई की किस गति से बढ़ी है और हम आकर वहां किस प्रकार से हम उस महंगाई को रोक पाए। एक आपने जनौषधि के बारे में जो बात कही है, देखिए क्या है कि धीरे धीरे करके इस योजना को वो अच्छी मजबूती के साथ में फलीभूत हो, बाकी सब चीजें हो। जिस बात को आपने संकेत किया है उसका एक कुछ ऐसा होता है, कुछ मेडिसिन जो महंगी होंगी, बहुत महंगी होंगी, वो जब मार्केट में आती है उसका थोड़ा कीमत अपने को लगता है कि उस कीमत के आधार पर नहीं है। परंतु अगर कुल मिलाकर देखेंगे कि ये एक ऐसा सरकार का पक्ष है जो सामान्य जीवन में जीने वाला व्यक्ति उस तक आसानी से पहुंच कर पाए। और आपने बात कही है, फिर भी अगर इसमें से कुछ चीजें होंगी तो उसकी चर्चा भी कर लेंगे। परंतु जहां तक महंगाई का और बाकी चीजों का है तो आपको आंकलन करना है, तो दुनिया का करियर उसके आंकलन के हिसाब किताब से भारत की स्थिति कैसी है तो एकदम आपको ध्यान में आएगा कि भारत कितने मजबूती के साथ उस महंगाई को रोके हुए। और एक बात मैं तरफ से एक मिनट मैं और आपको साथ जुड़ सकूं। 2014 में जब बीजेपी का गवर्नमेंट आया था, सब देशवासी ने, हम लोग सब ग्रुप ने आप लोग को वोट दिया है। उस टाइम में एक आप लोग का जो मैनिफेस्टो है वहाँ पे भी था हर साल 1 करोड़ अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉयमेंट देगा। अभी तक तो 9 करोड़ होने को सही तो हुआ नहीं, उसका बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, इसमें देखिए क्या है कि अगर केवल एक ही पक्ष को देखेंगे, सरकारी नौकरियों में कितने लोग गए, एक पक्ष ही है। अगर पूरे देश में देखेंगे कि लोगों ने अपने रोजगार के माध्यम से अपने पैरों पर लोग कितने खड़े हुए और उस रोजगार के कारण से उन लोगों ने कितने लोगों को अपने परिवार के साथ में आर्थिक दृष्टि से काम करने के लिए अपने यहाँ पर रखा है, इनका सबका अगर आप आंकलन करेंगे तो इसमें से आपको और मुझे ये ध्यान में आएगा कि प्रधानमंत्री ऋण योजना के माध्यम से कितने ही परिवारों में, मैं कल परसों सिलचर में तो मुझे दो लोग ऐसे मिले जो प्रधानमंत्री ऋण योजना के माध्यम से, जिनको उन्होंने, एक ने हार्डवेयर का काम किया हुआ था, एक ने फैक्ट्री लगाई हुई। उन्होंने कहा कि हमने जो है ना 12 लोगों को, 15 लोगों को काम दिया है। अब अगर इनको सबको हम एक उसमें लेकर आएंगे, रोजगार के पक्ष में लेकर आएंगे, और एक है कि भाई 1 लाख लोगों को, जैसे मान लीजिए 1 लाख लोगों को यहाँ सरकारी नौकरी मिली, तो दोनों पक्षों को आपको जोड़ना पड़ेगा। अब मेडिकली आप देखिए ना, मेडिकली जो मेडिकली चीजें हैं उनको अगर आप देखेंगे तो कितने मेडिकल कॉलेज थे पहले और कितने बच्चे पढ़ते थे, कितने का एडमिशन होता था। या कि किसी भी देश के नौजवान के हाथ में था, वो सुरक्षित अपने देश में पहुंचा। अगर इस प्रकार की हमारे देश के बारे में जो हमारी जो पहचान है, हमारी जो ताकत है, हमारे जो तिरंगा के जो हम जो सम्मान करते हैं, पूरे दुनिया में इस प्रकार का उसको किया, उसका परिणाम भी आपने अनुभव किया होगा। और मित्रों, मैं बहुत सी चीजों को अगर मैं चर्चा करना चाहूँ तो बहुत सी चीजों की मैं चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि जैसे हमारी राज्य सरकार ने अनेक प्रकार की योजना के माध्यम, जैसे हमारी कुछ महिलाएं हैं जिनकी जो शादी नहीं करती या कुछ विधवा हो जाती हैं, अरुणोदय के माध्यम से उनका 1250 रुपये उनके घर तक पहुँचते हैं और उनके सीधे खाते में पहुँचते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ और थोड़ा उसको बढ़ाने का काम सरकार सोच रही है। ऐसे बहुत सी योजनाओं को एक एक की अगर मैं चर्चा करूंगा तो मैं बोलता रहूंगा, आपको भी समय लगेगा। परंतु मेरा भरोसा और मेरा विश्वास ये जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिनको प्रारंभ से उन्होंने कहा कि छोटी छोटी चीजों को स्वच्छ भारत, यानी उस समय किसी को लगा स्वच्छ भारत का ये क्या है, आज हम देखते हैं पूरे देश में, यानी आपके साथ अगर आपका छोटा बच्चा बैठा हो और आप गाड़ी से कुछ कचरा फेंकना चाहते हो तो आपको ध्यान में आए या ना आए, लेकिन छोटे बच्चे को जरूर ध्यान में आता है कि नहीं पापा यहाँ नहीं, एक दूसरी तरह डालना है। ये पूरे देश में है। और आपने रेलवे के बारे में चारों तरफ से इस प्रकार से